Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes Current Affair Analysis. In this particular video, we will discuss August 24th, The Hindu Delhi edition newspaper. So our first topic of concern is about the successful landing of the Chandrayaan 3, and here India lights up the dark side of the moon. So India has become the fourth country to successfully land on the surface of the moon as the Chandrayaan 3 landers module with the rover in its belly. It successfully soft landed on the lunar surface yesterday, and also India is the first nation to touch down the South Pole. Till now, no country has achieved this, but India did it. So here, India is the first nation to touch down the South Pole or the polar region of the moon, and it is the fourth country total in the world on touching the lunar surface. So this is a very important update. Just remember about it. And one more point which is there, that the mission operation complex of ISRO telemetry tracking command network is located in Bangalore, and here basically they were celebrating for the success of Chandrayaan 3. So these are the important points which is important from your examination point of view. So here India is also holding its G20 presidency, and apart from that we also achieved such a great achievement, and here we are the only country which has reached South Pole of the moon, where till now no country had reached till date. Okay, so this is a very important article. Moving further toward our next important article, that is about the G20 summit, which is scheduled to be held in the New Delhi area. So here 450 quick response team to man Delhi during the G20 summit. So there are various arrangements which is being made for this particular G20 leaders summit, and here the summit will be held on September 9 and 10 at Bharat Mandapam in the ITPO complex. And here no fly zones has also been declared, and also there has been arrangement made at the venue of the ITPO complex. What are these? The 11th quick response team, the 5 firefighting unit and 24 ambulances will be available, and also there will be 402 QRT or the quick response team on various sites will be leading to the venue. One ambulance will be there, and 10 quick response team at IGI airport will be located, and one quick response team and one ambulance and one fire tender each at hotel, which will be accommodating the dignitaries who will be coming to attend this G20 leaders summit. And there is also a no-fly zone which will be declared. So here the skylift with the hydraulic platform and firefighting robot will be stationed at the summit venue throughout the duration of the event, and also there will be several locations in the city which will be declared no-fly zone for any unmanned aerial vehicle, UAVs, and the drones. So these are the important upcoming with regard to the G20 leaders summit. Moving further toward our next important article, there has been a new Delhi High Court judgment which came that wife firm on living separately from in-laws is an act of cruelty. So this judgment is there. It has been a news in transition. It has been there quite since a long time. So it has been recognized as an act of cruelty if woman is persistently insisting on living separately from her in-laws without any justifiable reason. Okay, only this much is important. Moving further toward our next important article, which is coming in from the editorial section. Here we have news with regard to the social security net for all. So here the author is saying that around 53% of all the salaried workforce does not have any social security benefit in India as per the PLFS survey or annual report. What is the meaning of this term social security? जिस टाइम तक हम properly capable हैं, for example from the age of 15 to we can say 50, we are completely capable of doing the work, or we can consider it as 59 और the retirement का age होता है, तब तक हम capable हैं कि हम अपना काम कर सकते हैं. लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा after 59 और after retirement
that we are unable to do any work. At that time, we require support or we required some special scheme or benefits which we can avail at this age. And also, this is one scenario. Apart from that, if someone who is like because of some work or due to something, he is unable to, like he is not a normal person, he is ill, or he we can say he is इंजर्ड while परफॉर्मिंग एनी वर्क, सो इस केस में भी उन लोगों के पास एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट है 2021-22 का, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 53% जो सैलरीड वर्कफोर्स हैं, दे डू नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. मतलब 53% के पास बेनिफिट ही नहीं है, रेस्ट 47% के पास है. तो 53% जो है वो आपके लैक कर रहे हैं इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स उनके पास नहीं है स्पेसिफिकली, तो आपका प्रोविडेंट फंड की सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, कोई डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं है. तो ये सारा जो आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो एक कंपनी को देना चाहिए बीइंग अ ह्यूमेन कंपनी, वो प्रोवाइड नहीं कर रही है अपने एम्प्लॉयज को. अब यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन हम क्या बना सकते हैं कि 1.9% जो है पुअरेस्ट और 20% जो आपका क्विंटाइल इंडिया का वर्कफोर्स है, उनके पास कोई भी ऐसी बेनिफिट है ही नहीं. मतलब आपका गिग वर्कर्स या हम ऐसे लोगों की बात करें तो गिग वर्कर्स के पास तो कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती. दे वर्क एज द पार्टनर्स, और जब ये जा रहे हैं तो इनके पास पैसे, इन्हें सैलरी मिलेगी, जब ये नहीं जा रहे हैं तो इनको सैलरी नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे गिग वर्कर्स हो गए, ऐसे एम्प्लॉयज हो गए जिनके ऑफिस में ये फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं. तो ये आपका मैक्सिमम चंक बनाता है हमारे लेबर फोर्स का. अब यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की, तो ये सबसे ज्यादा खराब मानी गई है कंपेयर टू द कंपेरेबल कंट्रीज. मर्सर सीएफएस ने इंडिया को 40 रैंक किया है आउट ऑफ 43 इन 2021 इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी. इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को, इस बात को, सोशल सिक्योरिटी के इश्यू को बहुत ज्यादा अवॉइड किया है और इग्नोर किया है. पॉलिसीज अनाउंस हुई है, कई सारी बजटरी एलोकेशंस भी किए गए हैं, लेकिन ये सब इनका यूटिलाइजेशन या इनका जो बजटरी एलोकेशन है ये सब लिमिटेड है. फाइनेंशियल ईयर 11 जो था उसमें आपका नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड और NSSF फंड वाज सेट अप फॉर दोज हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर. और इनका इनिशियल अलोकेशन जो था वो कितना था, 1000 करोड़ का, कि ऐसे जो आपके स्कीम्स लाए जाएंगे, जो वीवर्स, रिक्शा पुलर्स, बीड़ी वर्कर्स, इन सबको सपोर्ट करने के लिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उसके लिए आपका NSSF को लॉन्च किया गया था. अब यहाँ पे जो अमाउंट दिया जाता है दैट इज वेरी मीगर और बहुत छोटा अमाउंट दिया जाता है, तो उससे एक्चुअली कुछ हो भी नहीं सकता है, सोशल सिक्योरिटी हो भी नहीं सकती है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट. कैग की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके ऑडिट में जो आपका फाइनेंशियल ईयर 17 का ऑडिट हुआ था, तो उसमें ये पाया गया कि रुपीज 1927 करोड़ जो है आपका सिर्फ उतना यूटिलाइज नहीं हुआ है, इट हैज नॉट बीन यूटिलाइज. और कंसिक्वेंटली कुछ सिलेक्टेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो आपके काम पे आती हैं और बाकी सारे ऐसे ही रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करें जो कि आपका 1990s में स्टैब्लिश किया गया था, तो इसका मेन एम क्या था कि ये आपका ओल्ड एज पुअर इंडिविजुअल जो है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपका काम कर सके अपने घरों में, तो दे वर एलिजिबल टू अर्न अ मंथली पेंशन ऑफ ₹75 रुपीज में क्या ही होगा, तो इतना आपको प्रोवाइड किया जाता था मंथली पेंशन. अब कंट्रीब्यूशन जो सेंटर की तरफ से था ओल्ड एज पेंशन स्कीम में, इट हैज बीन स्टेगनेटेड एट ₹200 अ मंथ सिंस 2006. मतलब ये आपका मिनिमम वेज जो मिलता है एक इंसान को काम करने के लिए, उससे भी कम है. 200 रुपए में क्या ही होगा, तो ये आपका मंथली वेज इतना पेंशन दिया जाता था. इसके बाद आपका अगर हम जुलाई 2022 की बात करें, तो कैग ने आइडेंटिफाई किया कि जो आपका सेस कलेक्ट होता है
फॉर द सोशल सिक्योरिटी टू कंस्ट्रक्शन वर्कर दिल्ली के अंदर, उसको भी ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। 94% जो आपका पैसा है इस सेस के थ्रू कलेक्टेड, जो पूल फंड किया गया है, वो आपका यूटिलाइज ही नहीं किया गया है। हरियाणा में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे कैग ने नोट किया है कि जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम होता है स्टेट के सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ऑफ रुपीज 98.96 करोड़ अकाउंट ऑफ द डिजीज्ड बेनिफिशियरी। और यहाँ पे आपका जो बजटरी कट्स होता है मनरेगा स्कीम में, वो आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमने स्कीम्स लॉन्च किए हैं, हमने फंड्स इकट्ठा किए हैं, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से वो हो नहीं पा रहा है। देन कम्स द नेक्स्ट स्कीम ओवरसीज, अदर कंट्रीज में कैसे स्कीम्स है इसकी बात करें तो ब्राजील की जो जनरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो आपकी किस टाइप की होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड, सब्सटीट्यूटिंग द इनकम लॉस फॉर अ वर्कर वेदर इन पार्शियल और फुल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्कर है वो काम कर रहा है लेकिन कुछ रीजन के चलते वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड सब्सटीट्यूटिंग इनकम इसका दिया जाएगा, और अगर उसको पैसे मिलेंगे अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, चाहे वो पार्शियली हो या फुल्ली हो। इसमें क्या होता है, सपोज करिए इसमें ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए काम करते करते, कोई डिसेबिलिटी आ जाए जो आपके वर्कर्स को काम करने से रोक रही है, जैसे डेथ हो गया, इलनेस हो गया, तो इस केस में ऑब्वियसली उनके पास कोई और नहीं है काम करने के लिए फैमिली में, तो उनके ऊपर फैमिली बर्डन भी रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट के भी एस्पेक्ट होते हैं, तो इसीलिए आपका ये स्कीम लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो इनकम लॉस होता है दैट अकर्स ड्यू टू द वर्कर बीइंग इम्प्रीजन्ड इज कवर्ड बाय द लो इनकम इंश्योर्ड ILO 2030। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो आपका पे करती है कौन, वर्कर सपोर्ट फंड के थ्रू पे होता है, और हेल्थ केयर भी इसमें कवर्ड होता है थ्रू द यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, इसमें खुद ही से चीज स्टैब्लिश है कि अगर पैसों की कमी होगी, इफ देयर इज अ लैक ऑफ फंड, तो नेशनल ट्रेजरी स्टैब्लिश किया जाएगा और उसके थ्रू जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और इट कैन बी अवेल्ड विद द फोन कॉल और विजिट टू अ बैंक। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि आपको डॉक्यूमेंट देना है या आपको वेरीफाई करवाना है, सिर्फ और सिर्फ आप एक सिंपली फोन कॉल कीजिए, बैंक जाइए, बैंक अकाउंट में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 91% जो आपके इंडियन वर्कफोर्स हैं दे वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब बीडी वर्कर या आपके ये जो नॉर्मल लो ग्रेड के लोग हैं बस यही इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, बाकी लोग भी इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर भी होता है, मे बी यू माइट बी गेटिंग पेड वेल, बट यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी एक्सेस नहीं है, तो आप भी इनफॉर्मल सेक्टर को इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो 91% जो इंडिया की वर्कफोर्स है वो आपकी कहाँ काम कर रही है, इनफॉर्मल सेक्टर में, जहां पे आपका सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल ही नहीं है। और लास्ट 2 डिकेड में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो एजिंग सोसाइटी की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, अब अगर कोई बेनिफिट कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है तो वर्कर अपना पैसा खुद से सेव करते हैं, सेविंग भी कम अमाउंट की होती है, और उसके चलते उनके पास कोई सोशल प्रोटेक्शन ही नहीं रह जाता है। वहीं अगर हम बात करें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की, तो इसने बहुत सारे स्कीम्स को मर्ज किया था, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो है उनको मर्ज किया गया था, जो फंडामेंटली आपके फॉर्मल एंटरप्राइजेस से बात करते थे, और यहाँ पे भी इनफॉर्मल सेक्टर्स को मर्ज नहीं किया गया है। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया की है दे आर विदाउट एनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस चीज को प्रोवाइड करने के लिए, तो इंडिया ने बेसिकली आपका सोशल सिक्योरिटी हर इंसान को मिले इसके लिए इनको क्या करना चाहिए, फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिवली फीसिबल तरीके से अपना प्लान बनाना चाहिए। 3 ब्रॉड प्रिंसिपल हमेशा माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहला जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है EPFO का फॉर फॉर्मल वर्कर्स, इनको प्रोवाइड करवाना चाहिए, और इनफॉर्मल वर्कर के लिए विद मीनिंगफुल इनकम
partial contribution can be elicited along with persuading informal enterprises to formalize and expand their total contribution. EPFO में क्या होता है बेसिकली 12% का कंट्रीब्यूशन होता है, 12% एम्प्लॉयर भी देती है और 12% एम्प्लॉय के एंड से भी कटता है। तो यहाँ पे ये दोनों मिला के काफी अच्छा अमाउंट हो जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा होता है, 24% आपकी सैलरी का बच रहा है। उसके अलावा जब आप इसको यूज करना चाहते हैं यू कैन यूज इट। सो ऑन अ सिमिलर ग्राउंड इनफॉर्मल सेक्टर के लिए भी कुछ ऐसा जिनके पास मीनिंगफुल इनकम है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो अच्छी सैलरी पा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहिए और कंपनीज को चाहिए कि वो फॉर्मलाइज करे खुद को और अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज के लिए इंक्रीज करे। उनके लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं या जिन्होंने काम करना छोड़ दिया है, जो एक्स्ट्रा पैसा मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इस केस में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट को इन लोगों को पैसे देने चाहिए फॉर द ओल्ड एज पर्पस और फॉर दीज थिंग्स। तो अगर हम इसका पूरा एस्टिमेट करें कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन टू द पुअरेस्ट, 20% जो आपके वर्कफोर्स हैं दे वुड बी रुपीज 1.37 ट्रिलियन इंक्लूडिंग दोज हु आर एल्डरली, प्रेग्नेंट एंड डिसेबल्ड। इन सबको देने के लिए हमें रुपीज 1.37 ट्रिलियन रुपीज का आवश्यकता है। उसके बाद एडिशनली रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। कुछ प्रोग्रेस हुए हैं ऑब्वियसली, जब आपका कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी आया था तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ था जिसमें आपका बेसिकली स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क मिला था, जिससे सोशल सिक्योरिटी आपके अर्बन और रूरल पुअर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग इंडस्ट्री के वर्कर और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसमें प्रोविजन था लाइफ इंश्योरेंस का, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का, एक्सीडेंट इंश्योरेंस का, साथ में मैटरनिटी और हेल्थ केयर बेनिफिट का, अलोंग विद द ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड क्रच फैसिलिटीज फॉर द गिग वर्कर्स। तो यहाँ पे बहुत काम किया गया है लेकिन साथ में और काम करने की जरूरत है। उसके अलावा डिजिटाइजेशन पे भी बहुत ज्यादा पुश किया गया। ई श्रम पोर्टल वाज लॉन्च्ड जिसके थ्रू आपका 300 मिलियन वर्कर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था और उनको एक्सीडेंस इंश्योरेंस दिया गया था, 2 लाख का कवर, और डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख का कवर दिया गया था। लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा, और करने की जरूरत है। ई श्रम पोर्टल जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन का बर्डन डालता है इनफॉर्मल वर्कर्स पे, जो और इनको यहाँ पे बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन करना होता है, अपना आधार कार्ड देना होता है, और यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है इनके एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉयर को जब तक फायदा होता है वो इन लोगों को रखते हैं, जिस टाइम पे उनको लगने लगता है कि ही इज नॉट वर्किंग वेल, निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं और टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है। तो इस केस में जो आपके ऐसे लो सोशियो बैकग्राउंड के इनफॉर्मल वर्कर हैं वो कैसे रजिस्टर कर पाएंगे? कोई एम्प्लॉयर भी अपना तरीके से रजिस्ट्रेशन में हेल्प नहीं करता। तो इस केस में आपका जो एम्प्लॉयर है उसको भी इस प्रोसेस में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे आपका जो फॉर्मलाइजेशन होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का, दैट इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे इनफॉर्मल एम्प्लॉयर्स को भी अपने एंड से कुछ करना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी इस एंटाइटलमेंट करवाना चाहिए और इनके लिए भी ये चीजें मैंडेटरी बनानी चाहिए, इफ नॉट वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी रखेंगे तो कोई भी एम्प्लॉयर अपने एंड से काम नहीं करेगा सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे मैंडेटरी करना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में ग्रेटर सपोर्ट देना चाहिए उन लोगों के लिए जो अपने सोशल सिक्योरिटी के लिए मेजॉरिटी ऑफ इंडिया लेबर फोर्स जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए। और साथ में कंस्ट्रक्शन और गिग वर्कर्स के लिए बेसिकली आपका यहाँ पे पैन इंडिया में एक एक्सक्लूसिव लॉ बनाना चाहिए या ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो इनके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, जैसे कि आपका बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम है, इनको भी कैटेगरी ऑफ वर्कर्स में दिया गया है, तो ये एक्सपेंड करना चाहिए और इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको थोड़ा लूज करना चाहिए, सो दैट ऑल दीज पीपल कैन गेट बेटर social security benefits. Apart from that, there is also a very prominent workforce sector, that is the females. फीमेल्स जो होती हैं, जो बेसिकली आपकी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जिन्होंने कभी उनका एम्प्लॉयमेंट कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, या आपके जो माइग्रेंट वर्कर हैं ये डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं जहां पे काम कर रहे हैं,
चाइल्ड केयर भी उनको नहीं दे पाते हैं ये लोग, जो चाइल्ड केयर वर्कर्स होते हैं, तो इन सब के लिए भी स्कीम्स को एक्सपेंड करना चाहिए और डोमेस्टिक वर्कर्स को भी हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करना चाहिए। अगर हम बात करें ऑन एग्जिस्टिंग स्कीम्स की, तो कौन कौन से स्कीम्स अभी प्रेजेंट है जिनको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एक तो मैंने आपको अभी बताया एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ESIC एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इन सब स्कीम्स को ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट को अपना बजटरी सपोर्ट करने देने की जरूरत है और साथ में कवरेज बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पे जितने भी आपके एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए उनको सिंप्लीफाई करके आगे ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए जिससे वो भी ऑर्गेनाइज हो सके एंड दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नाउ further, there is also a need of social security to ensure more workers are aware of the available benefit. कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जो आपकी शक्ति केंद्र बनाती है, ये आपकी वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं और यहाँ पे ये बेसिकली आपके रन कैंपेन पे, मतलब विमेन्स के लिए स्पेसिफिकली ये आपका इंफॉर्मेशन या सोशल सिक्योरिटी राइट प्रोवाइड करवाती हैं। और यहाँ पे जैसे ही मतलब टाइम अब आ गया है कि सोशल सिक्योरिटी को और ज्यादा एनहांस करने की जरूरत है। सो दिस वाज अबाउट दिस होल इंपॉर्टेंट आर्टिकल। Now moving toward our next important article, on the moon, over the moon. So as we have already discussed, Chandrayaan 3 successfully आपका लैंड कर गया है हमारे जो ल्यूनार सरफेस है साउथ पोल पे, and it became the first country to land on the south pole and fourth country in the world to land on the surface of moon. Okay, जैसे ही आपका 6 PM के अराउंड इसरो में जो आपका लॉन्च हुआ, जैसे ही आपका लैंड किया, तभी आपके इसरो सेंटर में सब कोई खुशियां मना रहे थे क्योंकि इंडिया इज द ओनली फोर्थ कंट्री इन द हिस्ट्री टू हैव सॉफ्ट लैंडेड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून एंड फर्स्ट टू हैव डन सो इन द मून्स साउथ पोलर रीजन। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। नाउ देयर इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्पेस लाइट मिशंस हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनॉर्मस हंगर फॉर रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे मिशंस लॉन्च कर रहे हैं। इसीलिए बेसिकली चंद्रयान 3 बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज के टाइम पे रिसोर्सेज जहां जहां प्रेजेंट हैं उनको यूज करना और उनको अच्छे से एक्सप्लोर करना, ये हमारी सबसे ज्यादा नीड हो गई है। तो इसीलिए आपका चंद्रयान 3 जो है इसका लॉन्च होना या इसका सक्सेसफुल होना एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है इंडियंस के लिए। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था एंड इट वाज जस्ट 2.1 किलोमीटर अबव द लूनर सरफेस जैसे ही उसका इसरो से कांटेक्ट छूटा और यहाँ पे बेसिकली हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिसके चलते हम बेसिकली चंद्रयान 2 जो है उसमें फेल कर गए, लेकिन चंद्रयान 3 में हमने इस मिशन को अच्छे से अकम्प्लिश किया है। अब अगर हम बात करें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की, तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी आर्टेमिस अकॉर्ड को अभी साइन कर चुका है और इसका मेंबर है। जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, इट इज अ यूएस लेड मल्टीलेटरल एफर्ट टू प्लेस ह्यूमंस ऑन मून बाय 2025 और उसके बाद यहाँ पे जो ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसको भी एक वाइडर नेबरहुड में, मतलब आपका इसका एक वाइडर डोमेन अवेलेबल हो पाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दैट। सेकेंड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, and it will aim to place humans by 2025 on lunar surface. Okay, given the first that India has now achieved, it has an opportunity to lead the other Artemis countries who are interested in maximizing the contribution of space sector to their economies alongside US. वहीं अगर रशिया और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई रेस हो रहा था कि लूना 25 के साथ हमारा रेस था, बट हाँ लूना 25 फेल and we achieved our target, but it was not a race. Russia is a very friendly country to India, so that's why it was not considered as a race. International Lunar Research Station program जो है, जो आपका चाइना के साथ लीड कर रहा है आपका रशिया, तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड के पैरेलल चल रहा है। तो चंद्रयान 3 जब से आपका लॉन्च हुआ है, यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है चंद्रयान 3, तब से यहाँ पे बेसिकली जो
आपका आर्टेमिस अकॉर्ड है या आर्टेमिस अकॉर्ड में आपका कॉपरेशन है वो आपका और ज्यादा बढ़ गया है इंडिया का। Now another very important, there is a need of better spacecraft scientific instrument which is currently operated by India and largely concerned with Earth observation and remote sensing, जैसे कि आपका एस्ट्रोसैट हो गया, ये आपका एक एक्सेप्शन है। फोर्थ कमिंग मिशन हमारा सन के लिए आदित्य L1 है। एक्सपोसैट और निशार मिशन ये भी आपका सून लॉन्च होगा। तो इन मिशंस के बारे में आपको एक बार पढ़ना होगा कि व्हाट इज द आइडिया और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज इंपॉर्टेंट मिशन। अगर हम लैंडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो लैंडिंग है इट ऑल्सो ब्रिंग्स टू अ क्लोज द सेकेंड फेज ऑफ इंडिया लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे थर्ड फेज जो होगा इट विल बिगिन विद द कोलैबोरेशन ऑफ इसरो एंड जाक्सा, दैट इज द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी फॉर द लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन और ल्यूपेक्स मिशन। ल्यूपेक्स मिशन याद रखना किस किस के बीच का है, जाक्सा एंड इसरो। ओके, जाक्सा इज जापान, जापान का जो आपका एजेंसी है एरोस्पेस एजेंसी दैट इज जाक्सा। तो यहाँ पे बेसिकली लैंडर और रोवर जो है ये आपका दिया जाएगा, इट विल इन्वॉल्व लैंडर एंड रोवर, जो आपका वाटर आइस जो है मून के लूनार सरफेस पे या साउथ पोल पे उसको स्टडी करेगा। लूपेक्स इज सेट टू यूज द लैंडिंग सिस्टम दैट इसरो डेवलप्ड फॉर चंद्रयान 2 एंड 3, और यहाँ पे जो हमारा चंद्रयान 2 का फेलियर था उससे हमने सीख के इसको डेवलप किया है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, याद रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। Now there is an article on the UK-India relationship is alive with opportunities. We have already discussed this quite since a long time कि G20 इंडिया लीड कर रहा है और उसी के साथ आपका यूके जो है वो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपका आगे आ रहा है। तो यहाँ पे इंडिया और यूके विल साइन इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जस्ट दिस मच इज इंपॉर्टेंट। ओके, moving further toward our next important article that is coming in from the text and the context section. This is a very important article about the Bharat NCAP. तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने बेसिकली आपका यहाँ पे एक इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें आपका क्रैश टेस्टिंग करवाया जाएगा कार का। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्रैश हो रहा है इससे, ये क्रैश हो रहा है इससे, तो ये क्रैश टेस्टिंग करवाया जाएगा और उसके बेसिस पे आपका एक स्टार रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे 1 से लेके 5 तक स्टार्स होंगे, ये बताएंगे कि कितना सेफ्टी है उसका, अगर कभी टकराता है या कोई क्रैश होता है तो कितना सेफ्टी है। अब इस सेफ्टी को या ये जो स्टार रेटिंग सिस्टम है इसको हम क्या कहेंगे, भारत एनकैप, दैट इज द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये रेटिंग जो है ये आपकी वॉलंटरी होगी और इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2023। आपका जो भारत एनकैप प्रोग्राम है यहाँ पे जो कार है ये वॉलंटरली नॉमिनेट करेंगी, जो भी आपके कार्स होंगे वो वॉलंटरली नॉमिनेट करवाए जाएंगे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर द्वारा, और यहाँ पे उनका क्रैश टेस्ट होगा और उसके बेसिस पे उनको रेटिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे अलग अलग इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं, एक तो है एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, एक है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और तीसरा है आपका सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी। इन तीनों बेसिस पे आपका जो क्रैश टेस्टिंग है वो की जाएगी। जो आपके पहले 2 पैरामीटर है मतलब एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, ये कैलकुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट और इसके बेसिस पे आपका ये रेटिंग दी जाएगी। भारत एनकैप इज वॉलंटरी, ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत एनकैप इज वॉलंटरी और यहाँ पे जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे कैन कम एंड टेस्ट देयर व्हीकल। ओके, सो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंट आर्टिकल विच इज देयर इन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, मतलब जो भारत एनकैप टेस्टिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, that is modeled on the global NCAP, which is a project of UK based NGO towards zero foundation. This is important. Okay, so this much is important from your examination point of view. Now there is a news not that much important from your examination point of view, but यहाँ पे आया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट को अमेंड किया गया है। जुलाई 27 को पाकिस्तान सीनेट ने एक बिल पास किया था टू अमेंड द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952।
यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट्स हैं इन जनरल दे हैव बीन स्पेसिफिकली डिजाइंड टू इंटिमिडेट द वेटरन्स who have been supporting the former Pakistan PM by expressing their views on social media and public platform. इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। तो एक सेक्शन जो है जर्नलिस्ट के या ह्यूमन राइट एडवोकेट्स के, दे आर सेइंग दैट इट इज अगेंस्ट द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल। Okay, so this was an important article. Moving further toward our next important article, it is about India welcomes consensus-based approach to expand BRICS. अभी का एक मेन टॉपिक जो है, एक तो आपका G20 चल रहा है, दूसरा आपका मेन टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स हो कहाँ रहा है? ब्रिक्स समिट जोसेनबर्ग इन साउथ अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पे जोसेनबर्ग साउथ अफ्रीका जो है वहां पे आपका ब्रिक्स समिट हो रहा है। सारे ब्रिक्स के मेंबर जो हैं वो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया जोसेनबर्ग में, और इन्होंने 15 ब्रिक्स समिट को आपका एड्रेस करते हुए ये कहा है कि ब्रिक्स समिट हिस्टोरिक अफ्रीकन सिटी में हो रहा है, और यहाँ पे जो डिजिटल सोल्यूशन है इसका पूरा पूरा एडवांटेज लेना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ ग्लोबल साउथ। करंट मेंबर कौन है ब्रिक्स के? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जिसके नाम पे ये ब्रिक्स पड़ा है। और यहाँ पे जो आपके मोदी जी हैं इन्होंने कहा है कि 125 कंट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल साउथ समिट that we organized this January, we have proposed that African Union should be made a member of the G20 and I am confident that all the BRICS member will support these ideas. तो इंडिया ने यहाँ पे एक तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन की भी बात की गई है, और ये बात हुई है कंसेंसस बेस्ड, सब कोई आपस में आएंगे और यहाँ पे बात करेंगे और एक्सपेंड करेंगे ब्रिक्स को। इसके अलावा इन्होंने G20 में अफ्रीकन यूनियन जो है उसके एंट्री की भी बात की है। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस होल आर्टिकल। दिस इज अ न्यूज इन ट्रांजिशन। 22 से 24 अगस्त तक आपका ब्रिक्स समिट होगा, उसके बाद हम इसका पूरा समराइज तरीके से डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल में, दैट इज अबाउट मोदी एंड जी likely to attend East Asia Summit ASEAN meeting in Jakarta. So BRICS Summit में अभी ये लोग मिले ही हैं because China and India both are member. इसके अलावा यहाँ पे they will also come face to face in the next Leaders Summit, that is about the East Asian Summit and the other meetings of the ASEAN. और यहाँ पे आपका G20 के बाद यहाँ पे G20 Summit भी हो रहा है, उसके अलावा BRICS Summit भी हो रहा है। Soon there will be a meeting of the ASEAN India Summit भी होगा, और ASEAN मीट जो होगा वो आपका जकार्ता में होगा। So these are important events and important destination. Apart from that, C.R. Rao, who pioneered several fundamental statistical concepts, is dead. So just remember the name C.R. Rao. He is one of the world's most eminent statistician, and he did his professional career in USA, and he is famous for statistics knowledge, and he is dead now. So just remember the name and the field through which he is related. Okay, moving further toward our next important article that is coming in from the world section, and here there is a very big news coming in. So the Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin, he is feared dead in plane crash. So here the Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin, he was listed as a passenger on a private jet which crashed yesterday. तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सस्पेक्ट किया जा रहा है कि he is also dead. Now we will see that whether he is dead or not after the whole test and after the whole investigation we will get to know about it. So this is all for today. I hope you like this lecture. So please stay tuned with Manu Law Classes YouTube channel to get further update. Thank you everyone.